everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the very first chapter of 4th grade English book Marigold, and the name of the lesson is Wake Up. It's a very beautiful poem in which the child is waking everyone up. Okay, so just see what the wake up poem is all about. पहले देखते हैं कि poem क्या है. Okay, this poem Wake Up wants to attract us towards the beauty of nature in every creature. तो ये जो wake up poem है ये हमें क्या कर रही है, अट्रैक्ट करवा बता रही है कि जो ब्यूटी है नेचर की वो हर क्रिएचर में है. हर creature, every creature made by the mother nature is beautiful. It shows that we should wake up and see the rising sun. और ये कहता है क्या कि हमें सुबह सुबह उठना चाहिए और हमें क्या देखना चाहिए, राइजिंग सन देखना चाहिए, सूरज को उगते हुए देखना चाहिए, बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखना चाहिए, और स्माइलिंग एंड ब्लूमिंग लीफ एंड फ्लावर, और जो फ्लावर्स और लीव्स हैं उनको भी खिलते हुए रोज सुबह हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए. तो ये मेन एंड प्रोमिनेंट थिंग इज टू वेक अप अर्ली. और सबसे बड़ी चीज जो है, जो थीम भी है पोएम की, वो ये है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. ये चीजें तो देखने के लिए उठना ही चाहिए, बल्कि इससे भी ज्यादा है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. दैट इज वाई वी शुड वेक अर्ली इन द मॉर्निंग. वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो लेट्स रिसाइट द पोएम. ओके, चलो हम रिसाइट करते हैं पोएम को एक बार. वेक अप, wake up, wake up, it's a lovely day, oh please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day, oh please get up, come and play. Much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out, everyone is up and about. The cow, the horse, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep, 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 wake up. Okay, nice na? Very nice poem written by C. Fletcher, and we will recite it once again. Okay. Wake up, it's a lovely day, oh please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day, oh please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out, everyone is up and about. The cows, the horse, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. So, wake up. Written by C. Fletcher. So, very nice poem. And now we are going to see what's there, what's it's all about the poem. Okay? तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टैंजा को हम समझते हैं. Wake up, it's a lovely day, oh please get up and come and play. तो द पोएट जो है इसका, वो एक छोटा बच्चा है जो बोल रहा है. जो नरेटर है वो क्या है, एक छोटा बच्चा है जो बोल रहा है कि जल्दी उठो, वेक अप, इट्स अ लवली डे. क्यों? क्योंकि बहुत ही सुबह जो होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि जल्दी से उठो एंड सी दिस लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले. और प्लीज उठो, देखो और आओ मेरे साथ खेलो. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज and you can hear the buzzing bees. जो birds हैं, सुबह सुबह हम सुनते हैं चिड़ियों की चहचहाहट. सुबह सुबह चिड़ियां भी उठ जाती हैं. ये नहीं कि सिर्फ बच्चा ही उठा है और सबको उठा रहा है. चिड़ियां भी उठ जाती हैं और चिड़ियां क्या कर रही हैं, सबको उठा रही हैं. ठीक है ना? क्या करके? अपनी चीची करके. and you can hear the buzzing bees. और जो bees होती हैं, bees are very busy. लेकिन रात को वो अच्छे से रेस्ट करती हैं, लेकिन फिर सुबह में दे स्टार्ट अर्ली एंड दे आर वेरी बिजी. वो फिर बजिंग उसका सुबह सुबह शुरू हो जाता है. सो इट्स अ लवली डे. The child is saying that it's a very lovely day,
So please get up early and come and play with me. He is saying that it's a very lovely day, so just get up and come and play with me. Okay? Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up, come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up you sleepy head. तो वो कह रहा है कि चलो जल्दी उठ जाओ, सबको क्या कह रहा है, जगा रहा है. पोयम ही वेकअप है, तो क्या कह रहा है, सबको जगा रहा है, बोल रहा है कि वेकअप, इट्स अ लवली डे एंड प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले. तो वो उठ गया है और वो कह रहा है कि सब कोई जल्दी उठो और चलो मेरे साथ खेलो. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड. ये कोई टाइम है सोने का? इतने समय तक कोई सोता है? चलो जल्दी, सूरज उठ गया है तो तुम्हें भी अब उठ जाना चाहिए, ठीक है ना. तो वो कह रहा है कि ये कोई टाइम नहीं है सोने का. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड. बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और ये सोने का समय नहीं है. सो हरी अप यू स्लीपी हेड. तो क्या करो, स्लीपी हेड यानी क्या, सोता हुआ हेड. तो सोता हुआ हेड नहीं, सोते हुए लोग. वो बोल रहा है कि जल्दी से उठ जाओ यू स्लीपी हेड. हेड जो है वो पूरी बॉडी के लिए यूज किया गया है यहाँ पे. स्लीपी हेड का मतलब सिर्फ एक हेड नहीं, वो पूरी बॉडी. ओके, तो वो कह रहा है कि इतनी लेट तक सोता नहीं है कोई भी, तो जल्दी से जल्दी उठ जाओ और क्या करो, जल्दी करो. और यू स्लीपी हेड यानी स्लीपी हेड वो किसे बोल रहा है, द पर्सन हु इज स्लीपिंग. पर्सन जो सो रहे हैं उनको वो कह रहा है यू स्लीपी हेड. गेट अप अर्ली, इट इज वेरी लेट. इतनी देर तक कोई सोता नहीं है तो तुम जल्दी से जल्दी क्या करो, उठ जाओ. ओके, नाउ इन नेक्स्ट है, तो हमने देखा 2 पैराग्राफ में वो क्या कर रहा है, लोगों को उठा रहा है और उठने के रीजन बता रहा है कि क्यों उठना है. ठीक है, पहले भी बता रहा कि बर्ड्स भी उठ गई हैं, बीज भी उठ गई हैं. दूसरे में बोला कि इतनी देर तक कोई सोता है. अब देखो अब क्या बोल रहा है, वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट. तो सुबह उठ के क्या करो, सबसे पहले वॉश करो, ड्रेसअप करो. मतलब सुबह हमें अपना नित्य काम जो है वो बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए. सुबह सुबह उठ के हमें वॉश करो, ड्रेस करो एंड कम आउट. और फिर तब बाहर निकलो. एवरीवन इज अप एंड अबाउट. क्यों? क्योंकि सब कोई उठ गए हैं. सब जो भी हैं, मदर नेचर में जितनी भी चीजें हैं सब कोई उठ गई हैं. उनका कोई उन्हें कोई अलार्म लगा के नहीं देता है. बर्ड्स को कोई अलार्म लगा के देता है नहीं, लेकिन फिर भी वो उठ गई हैं. सूरज को भी कोई अलार्म लगा के नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो भी उठ गया है. ठीक है, बीज भी उठ गई हैं, सब कोई उठ गया है. तो तुम भी क्या करो, जल्दी से उठ जाओ. वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट. एवरीवन इज अप एंड अबाउट. द काउज, कौन कौन उठ गए हैं, काउज उठ गए हैं, हॉर्स उठ गई हैं, डक्स भी उठ गए हैं और शीप भी उठ गई हैं. सबके सब जो है दे हैव ऑल वोक अप. ओके, सो इट इज टाइम दैट यू ऑल्सो वेक अप. द टाइनीएस्ट चिकन चीप चीप चीप. और जो छोटी छोटी चिकन्स है ना, वो भी नहीं सो रही हैं, वो भी क्या कर रही हैं, वो भी उठ गई हैं मॉर्निंग में. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी सुबह सुबह क्या करना चाहिए, उठ जाना चाहिए, वेक अप. ओके, सो दिस इज द पोएम, जिसमें क्या कर रहा है, पोएम में जो छोटा बच्चा है वो क्या कर रहा है, सबको जगा रहा है. सबको जगा रहा है. क्यों? क्योंकि मदर नेचर में जितनी भी क्रिएचर्स हैं, जितनी भी ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हैं, दे हैव ऑल वोक अप and they are looking very beautiful and the child wants everybody to watch them, to look at them. Okay, so now let's discuss the summary of the poem. Wake Up poem is written by C. Fletcher and is where the poet tries to emphasize the importance of waking up early every day. तो मैंने पहले ही बताया था that early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. तो यहाँ पे जो पोएम है सी फ्लेचर वो भी यही कहना चाह रहे हैं, पोएट जो है सी फ्लेचर वो भी यही कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है. एंड ही इज टेलिंग अस दैट सुबह जल्दी उठना क्यों ज़रूरी है. ही इज एम्फसाइजिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आफ्टर रीडिंग दिस पोएम वन फील्स अट्रैक्टेड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर. इसके अलावा जल्दी उठेंगे अगर हम, और हम अगर सुबह सुबह का मौसम देखेंगे तो हमें बहुत खुशी होती है. वी गेट अट्रैक्टेड टू द मदर नेचर, है ना. वी फील अट्रैक्टेड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर. कभी भी देखना, अगर सुबह में उठते हो, ठीक है,
और तुम सुबह में अगर सूरज को देखोगे या फिर पत्तों को देखोगे और फूलों को देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, एंड यू विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट. Okay, and every creature looks very beautiful and very fresh in the morning. Okay, the poem talks about the importance of waking up early every day and observing the rising sun and its beauty. So obviously it is telling us that you should wake up early in the morning, you should see the rising sun, you should see the birds chirping, you should see the trees, fresh leaves of the trees, and the wind blowing, and the trees shaking their flowers. Okay, तो ये सारी चीजें जो है हम सुबह सुबह उठ करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. It says that one gets to see bloom leaves and flying birds when they wake up early. और ये हम तभी देख पाएंगे जब हम सुबह जल्दी उठेंगे. राइजिंग सन, ठीक है, ब्लूमिंग फ्लावर्स, ये सब क्या है, ये सब मॉर्निंग की एक्टिविटीज हैं. तो हम अगर इसे दोपहर में चाहेंगे कि हाँ हम राइजिंग सन देखें और ब्लूमिंग फ्लावर्स देखें तो वो हमें नसीब नहीं होंगे. तो फॉर सीइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर वी शुड वेक अप अर्ली. द बर्ड्स सिंगिंग इन द ट्रीज एंड द बजिंग बीज आर अ साइट टू बिहोल्ड. तो जो सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ होती है या फिर मधुमक्खियों का जो आवाज़ होता है वो एक ऐसा साइट होता है जो हमें क्या कर देता है, मंत्रमुग्ध कर देता है. एक जगह पे हमें खड़ा करके रख देगा, हम घंटों उनको देखते ही चले जाएंगे, ऐसा होता है ये. द पोएट कॉल्स आउट टू द चिल्ड्रन टू गेट अप फास्ट एंड एंजॉय द लवली डे. जो पोएट है, पोएट में एक्चुअली वो छोटा बच्चा नरेशन कर रहा है, तो वो छोटा बच्चा चाहता है कि सारे बच्चे जो है वो सुबह जल्दी उठे और सुबह जल्दी उठ के वो क्या करे, वो जितना भी ब्यूटी है नेचर का उसको इंजॉय करे, उसका आनंद उठाए, उनके साथ खेले, ठीक है, एंड टू कम एंड प्ले आउट इन द सन, और उनके साथ मिलकर के खेले, ठीक है. इट टेल्स रीडर्स टू वॉश अप एंड ड्रेस क्विकली एंड कम आउट एज एवरीवन इज अप इन द फुल स्पिरिट. और वो चाहता है कि सब कोई जो है पहले वो अपने को अच्छे से वॉशअप कर ले, सुबह उठ के अपने आप को साफ सुथरा कर ले और उसके बाद ड्रेसअप कर ले और तब वो बाहर निकले. और क्योंकि सारे लोग जो है वो फुल स्पिरिट में है, सब कोई फ्रेश है, सब कोई सो के जागा है, बहुत ही फ्रेश है, एंड एवरीवन इज अप, और सब कोई जाग गया है इन द मॉर्निंग. द हॉर्सेस, द काउज, द डक्स एंड द शीप एंड इवन द टाइनी चिकन इज अप एंड अवेक सेइंग चीप चीप चीप. तो हर कोई जाग गया है. और क्या करना चाहिए, पोएट इज इंसिस्टिंग कि हर किसी को सुबह सुबह मॉर्निंग में उठना चाहिए. और क्यों उठना चाहिए इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों उठना चाहिए. अब हम इसके राइमिंग वर्ड्स एक बार डिस्कस करते हैं. तो वेकअप इट्स अ लवली डे, पोएम का लास्ट वर्ड हमेशा राइम करता है. कोई जो लाइन्स होती हैं स्टैंजाज में, तो हम देखते हैं क्या कि जो लास्ट वर्ड्स है पोएम के वो हमेशा राइम करते हैं, है ना. तो इसमें भी लास्ट वर्ड हम देखेंगे कि वो राइम कर रहे हैं कि नहीं. Okay, wake up, it's a lovely day, oh please get up and come and play. So day and play, डे एंड प्ले, ये राइम कर रहा है. डे के साथ क्या राइम कर रहा है, प्ले. देन सिंगिंग इन द ट्रीज, बजिंग बीज, ट्रीज एंड बीज, अगेन ट्रीज एंड बीज आर राइमिंग. नेक्स्ट अगेन we'll see day, play, bed and head, bed and head. The other rhyming words are bed and head. Now just see in these lines, dress, out, about. तो out and about क्या है, about and out. These are the rhyming words. Rhyming words जानते हैं सभी, जो क्या करते हैं, जिनका जो ध्वनि होता है लास्ट वाला वो एक ही जैसा होता है, जो साउंड होता है लास्ट में वो सेम होता है. तुकबंदी वाले शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं वो, है ना. तो फिर उसके बाद sheep and cheap. So how many rhyming words are there in the poem? Cheap and sheep. So we find that there are 5 rhyming words in the poem, that is day, play, trees, bees, bed, head, cheap, sheep, about and out and about. Okay, so these are the rhyming words of the
पोयम। ये तुकबंदी वाले शब्द हैं जो क्या करते हैं, पोयम को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोयम। आई होप यू ऑल लाइक द पोयम, है ना। पोयम तो बहुत ही खूबसूरत थी। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स भी जरा देख लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक द बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग? बर्ड्स क्या करती हैं सुबह सुबह? ची 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 ची। तो एक्चुअली वो एक दूसरे को क्या बोलती हैं सुबह सुबह? ची 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 करके। मुझे लगता है व्हाट आई थिंक द बर्ड्स से गुड मॉर्निंग। बर्ड्स क्या बोलती हैं? गुड मॉर्निंग बोलती हैं टू ईच अदर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ही कि हु आर ऑलरेडी अवेक। पोएट जिसे जगा रहा है उसके जागने से पहले कौन कौन पहले ही जाग चुके हैं? तो पहले ही जागने वालों में से हैं बर्ड्स, बीज, काउज, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन्स आर ऑलरेडी अवेक। ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं दे आर ऑलरेडी अवेक। ओके, लेट्स सी। So the next question is which creature wake up in the morning before the child does? कौन से creatures हैं जो सुबह सुबह उठ जाते हैं child के भी उठने से पहले? तो वो हैं birds, bees, cows, horses, ducks, sheep and chickens. They wake up before the child wakes up. Okay? Now let's see some more questions of let's write. Connect the pair of sentences using and or but. तो and और but ये दो कनेक्टर्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो and और but कैसे एक दूसरे को, कैसे सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं? जब दो अपोजिट काइंड ऑफ सेंटेंसेस होता है तो हम उसको but से कनेक्ट करते हैं, लेकिन जब दो सिमिलर सेंटेंसेस होते हैं तो हम उन्हें and से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला है It is time to get up for school. I want to sleep for some more time. तो क्या हो गया है? स्कूल जाने का टाइम हो गया है, लेकिन हम थोड़ा और सोना चाहते हैं। तो हम किससे इसको कनेक्ट करेंगे? बट से, लेकिन से। It is time to get up for school, but I want to sleep for some more time. फिर तो हमने किससे कनेक्ट किया इसको? बट से। Sheila got some chocolates for her birthday. Sheila bought some chocolates for her birthday. She got some new clothes too. तो शीला क्या लाई? चॉकलेट्स भी लाई और नए क्लोथ्स भी लाई। तो यहाँ पे कुछ अपोजिट सेंटेंसेस नहीं हैं, तो हम इसे एंड से कनेक्ट करते हैं। शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड न्यू क्लोथ्स फॉर हर बर्थडे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप। सब कोई सो चुके हैं। आई वॉन्ट टू रीड बुक, लेकिन हम सोना नहीं चाहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? फिर अपोजिट। तो इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे? बट से। आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। नाउ सी, राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। तो राजू जो है वो क्रिकेट भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है। तो जब दोनों खेलता है तो हम इसको कनेक्ट करेंगे एंड से, हॉकी एंड क्रिकेट। ओके, so we have also done this. Now just see this question. Fill in the blanks according to the example given below. Tiny, tinier, tiniest. तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा late, later, latest. Okay, late, later, latest. Big, bigger, biggest. Round, rounder, rounder, roundest. Then it is sleepy, sleepier, sleepiest. Okay, sleepy, sleepier, sleepiest. Then it is small, smaller, smallest. Small, smaller, smallest. Then it is lovely, lovelier or loveliest. Lovely, lovelier, loveliest. Then again it is good, better and best. Good, better, best. Okay, so this is the answer. Tiny, tinier, tiniest.
late, later, latest, big, bigger, biggest, round, rounder, roundest, sleep, sleepier, sleepest, small, smaller, smallest, lovely, lovelier, loveliest, good, better, best. And with this we end the poem here. We will in next session we will do another story from your book. और इसके साथ ही मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम स्टोरी को पोएम को तो एंड कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मैसेज है उसको हमेशा से हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करो. वेक अप अर्ली, एज वेकिंग अप अर्ली इज गुड फॉर हेल्थ एंड इट मेक्स यू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी